So I mean, let's start off with the formal introduction of the academy. So the thing is, Vision CSS, we've been in business for like quite a few time. I mean, for a few years, and as you can see, we've had 130. I think 130 would be a lesser number. We've had more 200 than like 200 200, 200. अपडेटेड फाइल खोल लेते हैं ये नहीं. Yeah. Yeah, exactly. I mean, I remembered that, and Yes. that's how I realized. So the thing is, we've had around more than 200 people that are that have qualified and that are serving in services. So I mean, essentially, if I talk about this particular seminar, it's usually focused on CSS and PMS. That is there are the bureaucratic services of Pakistan. So, for instance, CSS is on a federal level, whereas PMS is on the provincial level. So, essentially, just by the way, अगर आपको मेरी English से issue हो तो you could point me out and I could return to bilingual one. So, अच्छा. So the thing is, the institute itself has been in the business, as I was saying, for quite a few times, and we've had successful students. I myself is one of am a student, and I've had the pleasure of being mentored by very seasoned and very talented group of teachers and faculty members. So I mean, essentially, what I can tell you about this academy is that you could. The clear difference between this academy and other academies is that I am usually not like marketing this thing, but what I've noticed is that in this particular academy, you would be confident that the focus is purely on you, and obviously you would be in our sheer focus, because what happens is that okay, her student pay essentially separately focus किया जाता है. That means कि अगर आप किसी चीज में लैग कर रहे हैं when it comes to writing, when it comes to analytics, when it comes to any other things such as making paper presentation, etc. So there is a pure focus on that, and our credentials are a proof of that particular thing. However, when we come back to the kind of exam which we are going to prepare for, I mean, most of you would be familiar with the CSS. It stands for Civil Superior Services, and the exam is conducted once a year in February or March. So it is expected to be held around in March, and it has around 12 subjects. 6 of them are compulsory, 6 of them are optional. So essentially what happens is that you have to prepare for the compulsory, so no matter what, and for the optionals, there are different groups among which you would choose those subjects from. So if you don't know how to choose those subjects, or if you have no idea that what subject is good for you, we as academy, we as mentors would be helping you with choosing those subjects. Not because not like other universities, not like other academies or institute that will just sell you the instructors that they only have for a certain subject, but because we would focus on what's good for you, what are you good at, what is good going well in the market, what are scoring subjects, and I mean obviously feasibility as well. So you would help you in choosing the optional subjects. So this is something which a CSS aspirant faces in the beginning of preparation. So you don't have to worry about that, to be very honest. The passing criteria for compulsory subjects is 40%, and for optional subjects it is 33%, and it comprises of except for essay exam, the other courses usually have MCQs and as well as a subjective part. And I mean, once you clear this exam, the written exam, you go on to the interview part, and there you are interviewed by some of the senior bureaucrats, and then you are set on the merit. So we as academy are going to prepare you for that every particular stage, so you don't have to worry about the next stages. So because the thing is, we have people who are working in the services, as well as the people who are qualified it, and the ones who are involved in the process. So this is something which comes as a whole. Also,
once you're done with the merit, you are posted in 12 groups. There are bureaucratic groups. It comprises of some of the major groups that we come across as Police Services of Pakistan. We come across District Management Service. We come across Customs, Foreign Services of Pakistan, Inland Revenue Services, Income Tax Group, Customs, Accounts Group, Commerce and Trade, Railway, and numerous other groups. So these are very prestigious groups, and hopefully some of you people will qualify that. I really hope that all of you people will qualify that and get posted in these services and are able to serve the country in the longer run. So I mean, the journey entirely is going to be with us, and I really emphasize and convince you that you start off with the preparation from now on, because the thing is, you're left with around let's say 6 or 7 months, and this is the optimal time where you would start the preparation. You would cover up all the syllabus, and then you'll still have the time for practice, because I mean, by the time you appear in the exam, you do not only need the preparation material, you also need to have a good practice. And the model in which academy works is that it prepares you on the syllabus, and then it makes you appear in mock exams. In those mock exams, you have papers that are on the pattern of CSS, and those exams are usually checked by the people who are also checking the exams for CSS actually. So I mean, you would get the idea that where do you stand, and what are the things what are the requirements you need to focus on. So I mean, I strongly encourage you that you start from now on, and then once you're done with all the preparation, because I mean, you need to learn a lot of things, you need to understand a lot of things, you need to build critical analysis, which is one of the most important thing which you need to consider when you're appearing in CSS exam or PMS exam. So by the time you build that, you would apply that in exams, you would get those papers checked by the instructors, and you would be good to go in the exam. So I mean, these are for some of the findings which we came across while we were in the process of preparation and making students ready for the exam. So I mean, with the passage of time, you would get to know, you would get to realize, and obviously to certain extent, which I've noticed is that starting में जब लोग शुरू होते हैं इसकी तैयारी करना, तो वो बहुत ही इंतहाई परेशान होते हैं कि यार पता नहीं क्या, बिकॉज द थिंग इज कि सीएसएस को बहुत एक हवा बना के जो ना पेश किया जाता है कि इट्स लाइक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप प्रॉपर पैटर्न, प्रॉपर प्लान और तैयारी के साथ चलते रहेंगे तो it'll be a piece of cake for you. And if you have good mentors, if you have good people that you can look up to who are checking your preparation and your progress, then I don't think you would have anything lacking when you appear in the exam, and it'll be easier for you. So I think this was the introduction for the academy and the exam you're going to appear for. And I hope that you sign up with us. And I mean, as sir has told you that I would be teaching you general science and ability. So I really hope to see you in classes. And I mean, there would be a lot more than just studying. So by the end of this particular session, you would not only be a person who would be good to qualify the exam, but also you would be a good citizen, known and a sane citizen who would be able to make good decisions and who would be knowing everything that is going on internationally, nationally, and socially. So CSS आपको सिर्फ एक अच्छा ब्यूरोक्रेट नहीं बनाता, CSS आपको एक अच्छा शहरी भी बनाता है, एक नॉन शहरी भी बनाता है, आपको डिफरेंस पता लग जाता है अपने में और बाकी लोगों में. So I think with that, I would give it back to Sir Aves, who is going to be your mentor, who is going to be the person you can look up to, I can look up to, and all of the students could look up to. He's the director of this particular academy and who has been teaching and making students appear in exams and passing the exams for quite a long time. So
I mean, even if you don't sign up with us, this is Sir Ravesh is the person whom you could reach out for almost anything. So I guess that's it. So sir, are you with us? जी जी, थैंक यू वैद। मास्टर्स या एमफिल या इवन पीएचडी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। जब मैंने ये प्रिपरेशन अपने टाइम में स्टार्ट की थी, आज से 13-14 साल पहले, तो माय डिग्री वाज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, देन माय एमफिल वाज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन ईयर बैक, अब तो याद भी नहीं कौन सी ईयर, खैर। एंड माय पीएचडी दैट इज इन प्रोग्रेस, दैट इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। इसके साथ साथ जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि इवन माय ग्रेजुएशन वाज इन इकोनॉमिक्स। जब मेरा टाइम था, उस टाइम पे भी इकोनॉमिक्स जौन सा था एक वर्स्ट हिट सब्जेक्ट था, और मेरे साथ जो लोग अपेयर हो रहे थे उनमें एक मेरे गोल्ड मेडलिस्ट भी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के थे, और उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की इस शौक में कि मैं जीसी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जीसी में टीच कर रहे थे, हमसे को 2-3 बैच सीनियर थे, और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो इकोनॉमिक्स में ही फेल हो गए। ठीक है, सो व्हाट all depends on your right selection, right guidance, right counseling and the direction जिसमें आपने मेहनत करनी। देखिए, सीएसएस की तरफ जो भी आता है वो मेहनत जरूर करता है। ठीक है, जब मेहनत करता है तो मेहनत में अल्टीमेटली होता क्या है, डिफरेंस कहां से क्रिएट हो रहा होता है, डिफरेंस यहां से होता है कि इनपुट कहां से जा रहा है। आप में से 99% लोग मार्केट से आउटडेटेड गाइड खरीदेंगे, आउटडेटेड पैटर्न को फॉलो करेंगे। जब एग्जामिनर के सामने पेपर आएगा, उनकी ग्रेवियंसेस अगर उठा के देखें, तो अगर आपको एग्जामिनर की ग्रेवियंसेस इस टाइम पे दिखाई जाए कि क्या है, तो वो ये प्रॉब्लम्स है जो एग्जामिनर कहता है कि मुझे पेपर में प्रॉब्लम मिल रही है, स्टूडेंट इसको कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबसे पहला क्रैम्ड मटेरियल, वन ऑफ द की इशू कि स्टूडेंट्स में सेल्फ स्किल डेवलप नहीं होती, सेल्फ रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होती। और ऑब्वियसली जब वो रट्टे लगा के जाएंगे, तो जब एग्जामिनर ने 20,000 पेपर चेक करने, तो उसको नजर आ जाना है कि 90% पेपर ही एक किस्म के, 90% पेपर की हेडिंग ही एक किस्म की है, उनका लेआउट ही एक तरह का है, तो ऑब्वियसली फिर उनको नंबर भी बराबर मिल रहे हैं। एक बड़ा एक मजे का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक नॉलेज में बड़ा वो इजाफा करेगा। एक एग्जामिनर पाक फेयर के पेपर चेक करता था, यहाँ भी जो स्टूडेंट्स मौजूद है मेरे साथ, पाक फेयर के पेपर चेक करते थे कि एग्जामिनर, उनसे मैंने एक सवाल किया कि एक साल डीएमसी में मैक्सिमम नंबर पाक फेयर में 28 मिले थे। तो मैंने उनसे पर्सनली ये क्वेश्चन किया कि ये जो 28-27 की फिगर है, इसकी क्या रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाई इन बिटवीन 28 एंड 27। अब उसकी रीजन आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बेसिकली उसकी बेटा जो की रीजन थी वो ये थी कि जो 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं अपने सब्जेक्टिव में, और उन 4 क्वेश्चंस में उस एग्जामिनर के बकौल ये था कि ज्यादातर क्रैम्ड मटेरियल और एक ही इदारे की गाइड को फॉलो करके अटेम्प्ट किया गया मटेरियल था। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है जो एक रिनाउंड इदारे बन जाते हैं, उनकी गाइड सब लेते हैं, उसी गाइड को फॉलो करते हैं, तो एग्जामिनर ने भी ऑब्वियसली वो चीजों को एक दफा देखा जरूर होता है, या वो जब मोस्टली पेपर्स में एक ही चीज देखता है तो उसे इस चीज का एक बड़ी अच्छी तरह आइडिया हो जाता है कि ये स्टूडेंट्स एक ही पैटर्न के मुताबिक जो लिख रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर यूजिंग अ सिंगल गाइड। अब एग्जामिनर ने उन सबको 5 नंबर ईच क्वेश्चन दिए, उनमें से किसी ने अच्छा लिखा होगा, किसी ने बुरा लिखा होगा, बगैर पढ़े एग्जामिनर ने 5 नंबर ईच क्वेश्चन दिए। आपका जो एमसीक्यूज का पार्ट था उसमें किसी के 7 ठीक थे, किसी के 8 ठीक थे, किसी के 6 ठीक थे, किसी के 9 ठीक थे। उससे क्या हुआ, 26, 27, 28, 29 ये नंबर गेम थी जो पाक फेयर में आ रही थी। ये आज से कोई 2-3 साल पुरानी बात है। मोस्टली स्टूडेंट जो से थे वो पाक फेयर में फेल हुए थे इस रीजन से। अब मसला क्या है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसके लिए पहले मैं खुद बताने से पहले मेरे जो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी प्रेजेंट बैच चल रहे हैं, उनमें उन्हें मैं कहूंगा कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, दैट हाउ वी आर ट्रेनिंग दे आर स्टूडेंट्स फॉर दिस एग्जाम। हमारे टेक्निक क्या है, हमारा तरीका क्या है, और हमारे स्टूडेंट्स हमसे किस हद तक मुतमईन है, या उनके क्या रिव्यूज है। तो जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं पिछले बैच के, जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आइज, इकरा, अदीला, कौन मौजूद है बेटा आप में से? हाँ जी, मैं मौजूद हूँ। इकरा मौजूद है जी। जी। इकरा, जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस विद स्टूडेंट। हाँ और जी, मुझे एक अच्छी चीज़ यही लगी कि जो आप हमें पढ़ाते हैं वो हमें इकरा, आर्टिकल में। टेल टेल योर बैकग्राउंड, और या 1 महीने में जो कुछ हुआ है वो सब कुछ बताएं जरा, चलें, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी हुआ सब बताएं। सही सही। आई हैव डन BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर। उसके बाद मैंने लम्स से मास्टर्स किया, और मैं यूटी में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला था, और लम्स में भी डीन्स ऑनर रोल में मेरी पोजीशन थी। उसके बाद से मैं जॉब भी कर रही हूँ पिछले 5 साल से कंटिन्यू, और मेरा जॉब सेक्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का।
और यहाँ पे अगर एकेडमी का मैं रिव्यू दूं तो यहाँ पर मेथडोलॉजी यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि क्रैम्ड मटेरियल से बचाने के लिए हम खुद से आर्टिकल पढ़ते हैं, और सर हमें मतलब यही हमारा मेथड है कि हम खुद से उसमें से हेडिंग्स भी चूज करते हैं, आउटलाइन भी चूज करते हैं और अपने वर्ड्स में लिखते हैं। मैं चूंकि आजकल मसरूफियत की वजह से मैं सारी रिटन असाइनमेंट्स तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने जितनी भी की वो ऐसे एक बार जो मैंने पढ़ लिया है आर्टिकल, वो मुझे इस तरह से याद है कि अगर उस पर अभी मुझे कोई भी लिखवा लेगा तो मैं लिख सकूंगी, क्योंकि इतने सॉरी हेलो, सर, दोबारा अनम्यूट करें जी जी। जी जी, इतने अच्छे तरीके से क्योंकि उसको एक्सप्लेन किया गया कि अब मैं अपने वर्ड्स में उसको बगैर कोई टेंशन के विद इन एन आवर में एक अच्छा आर्टिकल लिख सकती हूँ। तो ये चीज़ मैंने सीखी। दूसरी चीज़ यही है कि जो मेरे लिए जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिकॉर्डिंग्स हैं, कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑफिस कमिटमेंट्स की वजह से इस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं होती, तो आई कैन गो एंड लिसन द रिकॉर्डिंग्स, और जिसकी वजह से मेरे सारे जो कॉन्सेप्ट है या लेसन है जो मिस हो गए हैं आई कैन जस्ट रिवाइज देम अगेन। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन मैं वही कहूँगी कि आपको वही मिलेगा जो आप मेहनत करेंगे, लेकिन द थिंग इज हाउ यू डू द मेहनत, आप हार्डवर्क किस तरह से करते हो, तरीका आपका मैटर करता है बहुत। और इसलिए यहाँ का मुझे मेथड बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको ये देखूंगी कि एक बार यू शुड ट्राई coming to the academy and just see and look के what is the method and how the teaching is done here, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा पता चल सके, और आपको पता चल सके किस तरह से आपने चलना है CSS अगर आप करना चाहते हैं तो दिस इज ऑल फ्रॉम थैंक यू इकरा। सो दिस इज अ स्टूडेंट रिव्यू फॉर न्यू स्टूडेंट्स। और हम आगे अब हमने इंग्लिश की तरफ जाना है, क्योंकि करंट अफेयर की और यू कैन से सीएसएस की जो बैकबोन है वो इंग्लिश एंड करंट अफेयर है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी मेथडोलॉजी है जिसके तहत हमने आपको यहाँ प्रिपरेशन करवानी है, वो आपको बड़ी अच्छी तरह एक आपको जो अप्रोच है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलावा पूरे पाकिस्तान में वो अप्रोच कोई नहीं फॉलो कर रहा। आपको हमेशा या कराया क्या जाता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, कहीं भी आपको लिखना नहीं सिखाया जाता, कहीं भी आपको पढ़ना नहीं सिखाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे इनरोल्ड हैं, टॉप टियर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, और तमाम स्टूडेंट्स इस चीज को बखूबी जानते हैं कि एक स्टूडेंट जो लाइक लम्स ग्रेजुएट है या किसी बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, आफ्टर द वर्किंग ऑफ 1 और 2 मंथ्स वो तमाम लोग इक्वली वेल ट्रेंड हो जाते हैं, बिकॉज हमने उनको पढ़ना सिखाना होता है सबसे पहले। दैट हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट मटीरियल, बिकॉज व्हेन यू वांट टू इंप्रूव योर आउटपुट, फर्स्ट यू हैव टू इंप्रूव योर इनपुट, एंड योर इनपुट कम्स फ्रॉम दी बेस्ट सोर्सेज जो आपके पास इस टाइम मौजूद है। जब तक इनपुट आपका बेस्ट सोर्सेज से नहीं आएगा, कभी भी आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ सकता, ये बात याद रखें। दूसरी बात ये कि आपने चीजों को गैदर कैसे करना है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट इस टाइम सर्व कर रहे हैं, की पोजीशंस पे जो एसीज मौजूद हैं, मैं उनका अगर नाम लेके बताऊं तो ये शायद टाइम यहाँ पे कम है, इंशाल्लाह ताला आगे आपका इंटरेक्शन भी इन लोगों से रहना है। आप उन लोगों को भी उठा के देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि लास्ट 2 ईयर्स हमारे वो स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने बगैर किसी किताब को मार्केट से परचेज किए इस एग्जाम को क्लियर किया। जस्ट हमने जो अप्रोच यहाँ पे सेट की है कि आपके पास आज गूगल पे मटेरियल बहुत सारा मौजूद है, आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारा हम लोगों ने आपको पहले देना है, जो बेस मटेरियल है। उसके बाद हमने अपने नॉलेज को बिल्डअप करने के लिए जो रिसेंट आर्टिकल्स हैं, जो रिसेंट रिसर्चेस हैं, उनसे हमने हेल्प लेनी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है वो रह जाती है अंग्रेजी, कि आपने अंग्रेजी को कैसे बेहतर करना है। और उसके लिए यहाँ पे हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं मियां जमानुल्लाह, माशाल्लाह वन ऑफ द सीजन मेंटोर, और 5 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को उस स्टेज तक पहुंचा चुके हैं जो उनकी ड्रीम स्टेज है। जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें ये भी भूल चुका होता है कि प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल को डिफरेंशिएट कैसे करना है। और ये जमान साहब की एफर्ट है जो उनको बेस फ्रॉम द ग्रास, फ्रॉम द स्क्रैच रूट लेवल उनको टेंस से शुरू करवाते हैं और उनको मास्टर लेवल की इंग्लिश तक ले जाते हैं जो सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड है। सो जमान साहब, ओवर टू यू नाउ। जस्ट टेल हाउ वी आर गोइंग टू कवर इंग्लिश, what will be our strategy for English essay and English Prescient comprehension? जी, अस्सलाम वालेकुम all the students who are here in this webinar। और सर शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया है। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी, your voice is clear। अच्छा जी, स्टूडेंट सबसे पहले तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, एक तो ये है कि मैं
सबसे पूछता हूँ आपसे कि जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर है उसके हवाले से। अच्छा, एक जो आप लोगों को जैसे कि सबको पता है कि सीएसएस में जो जो उसके रिजल्ट्स आते हैं रिटर्न के, उनमें से 99% लोग जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं इंग्लिश के पेपर में, उस पर कभी एसए में कभी प्रेसी में, ठीक है। और ज्यादातर लोग जो है वो एसए के पेपर में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ठीक है। इवन अगर आप सीएसएस की एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं एफपीएससी की वेबसाइट पे, उनको भी अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप लोग बेहतर तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि फेलियर की जो इतनी बड़ी रीजन है, फिर उन्होंने रीजन मेंशन भी की हुई है। अच्छा, वो जो रीजन मेंशन की हुई है ना, अगर आप उसको डिटेल में उसको देखें ना, तो उसमें उन्होंने मेंशन ये किया हुआ है कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं दे आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द बेसिक स्ट्रक्चरल जो मिस्टेक्स है ना आपकी, जो हम टेंस जो हम यूज करते हैं, जो हम सेंटेंसेस बना रहे होते हैं, उसमें हमारे बेसिक इश्यूज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वहां पे एग्जांपल कोट की गई है कि स्टूडेंट्स आर अनएबल टू आइडेंटिफाई बिटवीन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट सिंपल टेंस। अब ये बड़ी बेसिक सी चीज है ना, कोई इतनी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इवन हम स्कूल लाइफ से टेंसेस, पैसिव और नरेशन जो है, ये बेसिक चीजें हम करते आ रहे हैं। लेकिन सीएसएस में जब हम लिख रहे होते हैं, वहां पे ये मसला आ जाना, तो ये एक फेलियर की तरफ ले जाता है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि इंग्लिश प्रेसी में और इंग्लिश एसे के पेपर में इवन जो टॉपर्स भी होते हैं वो भी 40s में ही खेल रहे होते हैं। मतलब ऐसे में आपने 40 लेने हैं, चलो प्रेसी के पेपर में आप 60s में 70s में जा सकते हैं। अच्छा, मसला ये आता है कि मैट्रिक और इंटर तक तो हमें ग्रामर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो हमें पता होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, हमारी राइटिंग ना बड़ी फ्री हो जाती है, ठीक है। फ्री राइटिंग इन द सेंस कि हम ग्रामर को जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसे भूल भूल चुके होते हैं। और उसका बैड इम्पैक्ट ये होता है कि जब हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट करने के बाद सीएसएस की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, तो हम बेसिक रूल्स भूल जाते हैं। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स कहूंगा मैं आप सबको, जो एस्पायरेंट्स होते हैं ना, वो ये उनको ये इतना मतलब वो इतना पहाड़ समझ लेते हैं इंग्लिश को। और दूसरा ये है कि कुछ लोग जो सीएसएस की तैयारी करवा रहे हैं एस्पायरेंट्स को, वो भी इसको एक बहुत ही बड़ी चीज बना देते हैं। और स्टूडेंट्स हर चीज को एक साइड पे रख के इसका इतना ज्यादा प्रेशर जो है वो इनटेक कर जाता है कि आप लोग समझते हैं ये पता नहीं ऐसे पास ही नहीं होना, प्रेसी पास ही नहीं होनी, ठीक है। अच्छा, अब उसकी ना मैं आपको बेसिक सी रीजन बता देता हूँ, ठीक है। बड़ा कंसाइसली मैं पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आते हैं टेंसेस, पैसिवाइज, नरेशन और करेक्शन के कुछ रूल्स, ठीक है। ये 4-5 चीजें जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। जब आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं ना, बिलीव करें आपके लिए इंग्लिश प्रेसी को पास करना और इंग्लिश ऐसे को पास करना मुश्किल काम है ही नहीं। किसी भी सीएसपी का या इवन किसी भी क्वालिफायर का इंग्लिश के पेपर उठा के देख लें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पास हो जाते हैं बहुत से लोगों के, पीएमएस भी पास हो जाता है, सीएसएस भी पास हो जाता है। लोकेशन नहीं होती रिटर्न मार्क्स की वजह से, वो तो एक अलहदा बात हो जाती है। लेकिन जिन लोगों का एसए और प्रेसी पास होती है, उनके अगर आप उनके नोट्स को देखें या उनको आप चेक करवाएं या आप उनसे बात करें, वो कहेंगे कि आपने सिंपल टेंसेस लिखने हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स बनानी है, शॉर्ट स्टेटमेंट्स बनानी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपने टेंस की गलती नहीं करनी, स्पेलिंग की गलती नहीं करनी, आर्टिकल का ठीक यूज करना है आपने, प्रपोजिशन ठीक यूज करनी है। अब ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। एक चीज तो हो गई ये। अच्छा, अब हम उसके बाद बात ये करते हैं कि इंग्लिश प्रेसी का पेपर जो है उसकी टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। अच्छा, जो इंग्लिश प्रेसी का पेपर है ना, ये याद रखना, ये ऐसे ही है जैसे हम जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर करते हैं, 2+2=4, ठीक है। आप अगर आपके पास हर सिलेबस हो तो काइंडली जरा ओपन कीजिएगा। अच्छा, अब अगर प्रेसी का पेपर देखें ना, तो प्रेसी के पेपर में 60% पोर्शन उन चीजों का है जो कि इंक्लूड, जिनमें आप जिनकी 20, जैसे कि 20 नंबर की आपकी वो कैब है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, ठीक है। प्रपोजिशंस हैं 5 नंबर की, 5 नंबर की आपकी नरेशन है, ठीक है। एनालॉजीज का पोर्शन है 5 नंबर का, फिर इसके अलावा आपकी करेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजों को मिलाते जाएं तो ये ऑलमोस्ट आपके 60 नंबर बन जाते हैं। जबकि हम गलती क्या करते हैं, हम इन 60 मार्क्स को साइडलाइन करते हैं और हम तैयारी करते हैं
प्रेसी के सिलेबस हमारे नंबर के पास सवाल स्क्रीन पे के आ ऊपर। गया। ठीक है, और हम तैयारी किस चीज की कर रहे होते हैं, स्ट्रेस किस चीज की, एंग्जाइटी किस चीज की ले रहे होते हैं, 20 नंबर के प्रेसी की। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ प्रेसी में मेन चीज क्या है। देखो प्रेसी 20 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर उसने लिखा हुआ है कि टाइटल क्या है, बाकी जितना भी अच्छा इंग्लिश प्रेसी का पेपर हो जाए, मतलब प्रेसी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, इवन जो बंदा प्रेसी अटेम्प्ट सॉरी जो चेक कर रहा है ना, अगर वो खुद भी सीएसएस के एग्जाम में बैठ के लिखे और बाद में उसी को चेक करे, वो अपने आप को मैक्सिमम जो नंबर है ना अवार्डिंग मार्क्स प्रेसी में, वो है 7 से 8। 7 से 8 नंबरों का मतलब ये है कि आपकी प्रेसी टू द पॉइंट होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, टाइटल एक्यूरेट होना चाहिए, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, फिर आपको मिलने हैं 8 नंबर। और अगर आपने एरर फ्री लिखा है, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, एरर फ्री लिखा है और 1/3 लिखी है, लेकिन उस तरह की ग्रामेटिकल जो है सॉरी इडियोमेटिक सेंस में नहीं लिखा, तो फिर आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, मतलब कि 5 और 8 का डिफरेंस 2 से 3 नंबरों का है। इसी तरह जो कंप्रीहेंशन है, कंप्रीहेंशन का भी सिंपल सा फार्मूला है कि आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपने उसमें से जो क्वेश्चन उसने जो, अच्छा कंप्रीहेंशन में स्टूडेंट क्या बड़ी मिस्टेक करते हैं सारे एस्पायरेंट्स ही, जितना उसने क्वेश्चन पूछा है, ये पूरा सीएसएस का रूल है, गोल्डन वर्ड में बेशक लिख लें, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है और जितना पूछा है आप लोगों ने उतना ही लिखना है, ना उससे ज्यादा लिखना है ना उससे कम लिखना है। अब कंप्रीहेंशन में जो क्वेश्चन पूछा हुआ होता है आपने उतना ही लिखना है और वो अपने अपने अल्फाज में लिखना है। अगर 2 सेंटेंसेस बनते हैं 2 बनाए, 3 बनते हैं 3 बनाए, 4 बनते हैं 4 बनाए। ठीक है, आपको उसमें से जो है वो 1/3 नंबर मैक्सिमम है। बाकी सब के सब जितने भी मार्क्स हैं वो सारे के सारे, अगर आपका ठीक है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो बंदा जीआरई को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेता है वो 16 to 17 मतलब 15 प्लस मैक्सिमम जो है ना, वो आप कह लें 15 नंबर। और अगर जिस तरीके से लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें भी इवन जिन लोगों ने जीआरई की थी वो भी 6-7 नंबर उनमें से ले लिए थे लोगों ने, क्योंकि लास्ट ईयर वाली जो थी वो जरा मुश्किल था ना पेपर उसमें। लेकिन अगर नॉर्मली पेपर आता है, क्योंकि लास्ट ईयर तो उन्होंने टारगेट भी किया था ना इस पेपर को, नॉर्मली जो है आप 15 नंबर 13 14 15 यहाँ तक आप नंबर उसमें से गेन कर लेते हैं जीआरई कर जो है 3500 वर्ड्स। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पहले वो 3500 अल्फाज ना करें, आप बैरन की 750 हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट है, वो भी उसी में से जो है उसको लिया गया है, आप वो बैरन की 850 वर्ड्स की हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट है उसको कर लें। ठीक है, फिर भी आपके नॉर्मली 10-12 नंबर आ ही जाते हैं। फिर आपने डॉन भी पढ़ना होता है, ठीक है, उसके आर्टिकल में से कुछ मुश्किल अल्फाज निकाल लिए। अच्छा वोकैब में से जब आपने ये वोकैब करनी है ना, साथ साथ आपकी प्रपोजिशन भी प्रिपेयर हो जानी है। ठीक है, आपकी जो उर्दू से इंग्लिश की वोकैब है, और एक और जो जरूरी चीज ये है, अब उर्दू से इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन का, आपने जो ट्रांसलेशन तर्जमा करना होता है, अब उसका बेहतरीन तरीका ये है कि टू दी पॉइंट में कोई 15 से 20 पैराग्राफ्स बने हुए, उनको प्रैक्टिस करें, वो बड़ा ही मतलब सिंपल से हैं, उनको प्रैक्टिस करें, चेक करवाएं किसी को। उसके बाद पीएमएस पंजाब जो है या पीएमएस केपी के जो है उनके इंग्लिश के पेपर निकालें, उनमें जो पैराग्राफ्स हैं उनको प्रैक्टिस करें। पंजाब में सिविल जजेस के जो एग्जाम्स होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन के एग्जाम होते हैं, उसमें जो पैराग्राफ आए हैं उनको प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम ये 30 पैराग्राफ आप प्रैक्टिस कर लें, आप उसमें 10 में से 8 नंबर ले लेंगे। अच्छा अब इसमें एक और भी ट्रिक है, ट्रांसलेशन को जब आपने करना है ना, देखें जिस तरह इंग्लिश में एक एग्जैक्ट उसकी एक्यूरेट होती है ना पहचान जो है कि फलां टेंस जो है उसकी क्या, इस तरह उर्दू में भी। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई, जस्ट 1 सेकंड में बात कंप्लीट करूं उसके बाद आप पूछ लीजिए। अच्छा अब इस तरह उर्दू में भी उसकी पहचान होती है, ठीक है, कि उसका जो सेंटेंस है उसका एंड जो है वो बताएगा कि ये किस टेंस में है। तो ट्रांसलेशन करते वक्त स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं कि उसने बात किसी और टेंस में की होती है, आप किसी और टेंस में करते हैं। ठीक है, तो बात ये ओवरऑल जो है सारी बात करने का मकसद जो है प्रेसी के पेपर में से वो यही है कि प्रेसी का पेपर आप लोग अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लें, 100 नंबर का सब्जेक्ट है, इसको अगर महीना अच्छे तरीके से लगा लें, इस पर 15 से 20 दिन और साल प्रैक्टिस कर लें, ये पेपर कभी भी फेल नहीं हो सकता आपका।
अब हम आते हैं इंग्लिश ऐसे के ऊपर। अच्छा जी, इंग्लिश ऐसे में बड़ी ही सिंपल सी बात है, इंग्लिश ऐसे भी वैसे ही है जैसे मैथ है। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल सारे के सारे, अगर हम टॉपिक की बात करें ना, तो 6 से 8 कंप्लीट जो है ना आपके टॉपिक बनते हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और करप्शन। ये एक ही है सारा, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, करप्शन, ठीक है, ये सारे के सारे एक ही तरह के एसेज हैं। क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फिर इसके अलावा ये जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, जिसमें आप कह लें कि ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम आ जाता है, ठीक है, आपकी ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, ये भी सारा एक ही टॉपिक बनता है। अब करना इसमें ये होता है कि आपने टॉपिक 4-5 सेलेक्ट करें अपने, उनमें से पास्ट पेपर्स में से जो जो ऐसे आए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हर साल, हर 1 साल छोड़ के 1 साल या मतलब 2 साल बाद ऐसे आता ही आता है। अब उसकी बेसिक सी ट्रिक ये है कि एजुकेशन का निकालें 5-6 ऐसे जितने भी उन्होंने पूछे हुए हैं, ठीक है, उनको देखें किस पैराडाइम में पूछा है, हर ऐसे में कौन सी बात की गई है, ठीक है, उस पर सिंपल रिसर्च करें, ठीक है। रिसर्च इस तरीके से करें कि जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स हैं या पाकिस्तान में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके ऊपर जो रिसर्च, जैसे इपरी है, ठीक है, इसी तरह से और जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको ढूंढ लें, आपको मिल जाएंगे। उनमें आपको उनके कॉजेज, फ्लॉज, कॉन्सिक्वेंसेस, पाकिस्तान में उसके ऊपर कितनी आज तक जो लॉज बने हैं, ठीक है, ये जो भी मामलात हैं आपके, उसकी इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, उसकी रिपोर्ट्स हैं, यूएनओ की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीजें आपने रिसर्च करके टॉपिक वाइज जो है आपने करनी है, ठीक है। उसको कंप्लीट कर लें, उसके नोट्स बना लें। और इंग्लिश ऐसे जो है, मैं ये सबको कहता होता हूँ कि इंग्लिश ऐसे आपने तब प्रिपेयर करना है जब आपके एटलीस्ट 2 आपके ऑप्शनल तैयार हो जाएं और 2 आपके कंपलसरी तैयार हो जाएं। देखें, अगर आप बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप बैठ के। जब आपके पास 500 से 600 नंबर की तैयारी कंप्लीट हो जाती है या आपके पास एक ओवरव्यू आ जाता है, फिर आप उस पोजीशन पे होते हैं कि आपके पास आइडियाज होते हैं, आप ब्रेनस्टॉर्म करके लिख सकते हैं, ठीक है, और आपने रिसर्च किए हुए हों टॉपिक। अगर आपने ऐसे को इस तरीके से प्रिपेयर किया और जब वो स्टेटमेंट आती है, फॉर एग्जांपल ऐसे आया था कि क्लासरूम्स डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द नेशन, ठीक है, अपेरेंटली तो ये आपका देखें एजुकेशन के ऊपर ही है, लेकिन अब एजुकेशन को वो बेस लेवल के ऊपर ले गया है, बेस लेवल, ठीक ठीक है, कि जो आपके क्लासरूम्स हैं वो आपकी नेशन कैसे बिल्डअप करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अब आपने इसको स्पेसिफाइड नहीं करना पाकिस्तान के साथ। स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि ऐसे उसने जनरल साइंस में पूछा है, आप उसको सारे का सारा पाकिस्तान के ऊपर पर्सपेक्टिव में ले जाएं। अच्छा, अब उसने नेशन की बात की है, तो आप लोगों को ये चाहिए कि जब उसने नेशन की बात की है तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस अंडर डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। अब आप उसमें एग्जांपल्स कोट करें जी कि चाइना का एजुकेशन सिस्टम है, देन उसका फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है, मतलब आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, पाकिस्तान के फ्लॉज भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भी वही स्ट्रेटेजी है कि जो उसने पूछा है आपने वही बताना है, ठीक है। उसको मेन हेडिंग्स में, वो भी हम इंशाल्लाह जब क्लासेस होंगी हम बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन बात ये है कि आप ऐसे तब लिख सकते हैं जब आपके पास अच्छा रिसर्च मटेरियल होगा और आपकी ग्रिप होगी टॉपिक के ऊपर। अब हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद डॉन में अच्छा आर्टिकल आ जाता है एजुकेशन के ऊपर, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर, कोई ना कोई यूएनओ की रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, एक्सप्रेस ट्राइब्यून में आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपने इंग्लिश ऐसे को जब आपने प्रिपेयर करना है, तो काइंडली ये बात ध्यान में रखें, आपने इनका रजिस्टर बनाना है, पाकिस्तान अफेयर्स का अलहदा से, करंट अफेयर का अलहदा से, इंग्लिश का अलहदा से। और जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई रेलिवेंट आर्टिकल मटेरियल आता है, बजाय ये कि आप उसको पढ़ें और छोड़ दें या उसको कट करके लोग रख लेते हैं, वो बड़ी गलत सी टेक्निक है। आप उसे लें, उसको फौरन से उसके जो भी, क्योंकि हर जो भी उसने आर्टिकल किसी भी ऑथर ने लिखा होता है उसमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती, और कभी कभी तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट बात होती है, तो उसको फौरन से लिख लें पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपने चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। तो ये था जो एक ओवरव्यू है, जो बेसिक सी टेक्निक्स हैं इंग्लिश के हवाले से,
हाँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन इस यहाँ तक पूछना है या ओवरऑल इंग्लिश के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, माशाल्लाह जमान साहब ने बहुत अच्छी तरह से इन डेप्थ इंग्लिश की अच्छी तरह से एनालिसिस आपको दी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको हमने किस तरह कवर करना है, और अब आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड स्पेसिफिकली इंग्लिश एंड ओवरऑल अबाउट सीएसएस अप टिल नाउ, तो यू कैन आस्क। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपकी ये बात समझ नहीं आई, आपने कहा इंग्लिश ऐसे तभी प्रिपेयर करें जब 2 ऑप्शनल और 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर कर लें। सर काइंडली इसे एक्सप्लेन कर दें। जी, अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस साल का इंग्लिश ऐसे का पेपर देखे हैं तो एक ऐसे आया हुआ है जो कि काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही था टॉपिक। अच्छा, अगर आपके पास इकोनॉमिक सस्टेन, आपको ये पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी होती क्या है, और दूसरा आपको ये नहीं पता कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। देखें, ये दो बड़े मेन कॉन्सेप्ट हैं, आपने इनके ऊपर पढ़ा नहीं है तो आप लिखेंगे क्या, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपने इकोनॉमी और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी है आपके पास, क्योंकि ये ऐसे इस तरीके का था कि आपके पास कम अज कम 15 से 20 रिपोर्ट्स के जो है वो रेफरेंसेस होने चाहिए, फिर आप इस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो मैंने बात इसलिए की है, एक तो आपने रिसर्च की हुई है, दूसरा देखें अगर आपने पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स पढ़े होंगे, इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े होंगे, कोई ना कोई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। अगर मैं आपको बिल्कुल कह दूं कि आप इस पे लिख के आप जितनी मर्जी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये बहुत ही ओल्ड किस्म का कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ऐसे में कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। वो होते थे लिटरेरी एसेज आते होते थे, प्लेयर्स ऑफ रीडिंग पे आपने लिखना है जी। ठीक है, आप अच्छी अच्छी बातें सोच के लिख लेते थे। अब ये तो सारे का सारा रिसर्च ओरिएंटेड अब मटेरियल आ रहा है। अब जितने भी एसेज आए हैं इस साल सारे के सारे रिसर्च ओरिएंटेड हैं, आपके पास रिसर्च वाला मटेरियल है, रिपोर्ट्स हैं, तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप वहां पे बिल्कुल ब्लैंक बैठेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस अगर किसी ने सब्जेक्ट पढ़ा है आईआर, तो वो एक अच्छा ऐसे अटेम्प्ट कर लेगा वहां पे बैठ के। अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, वो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, अब पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पे एक ऐसे आया था, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। अब पोलराइज्ड पॉलिटिक्स पूरी एक डोमेन है पॉलिटिकल साइंस में, अगर आपने वो पढ़ी ही नहीं है, आप कैसे ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ही नहीं पता। तो ये मेरा बात करने का मकसद ये था कि आप लोग जब तक अपने कंपलसरी और ऑप्शनल में देखें ना, आपने अगर कोई भी कंपलसरी या ऑप्शनल, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट की है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक डिस्कशन है, उसके ऊपर कितने क्वेश्चंस आते हैं, आपने वो पढ़ा होगा, आपने साथ कोई फिलोसफर्स पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन की कोई थ्योरीज पढ़ी होंगी, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर में से हिस्ट्री, कोई प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के, कोई सोल्यूशन, कोई रीजनल फॉरेन पॉलिसी की चीजों, ये सारी चीजें अगर आपने देखी होंगी तभी आप इस काबिल होंगे ना कि आप कुछ ना कुछ बैठ के सोच सकें और लिख सकें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, कि जी मैं आपकी इंग्लिश की इवैल्यूएशन करके देता हूँ, आप मुझे ऐसा करें कि डेमोक्रेसी के ऊपर ना एक 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख के दें। अगर अब आपको डेमोक्रेसी की बेसिक कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है तो आप क्या लिखेंगे इस पे। ठीक है, आपका पहली स्टेटमेंट और आखिरी स्टेटमेंट और जो आपने उसके मिडल में जो आपकी मेन बॉडी होगी उस पैराग्राफ की, आपने जो बातें लिखी होंगी वो इतनी इनकंसिस्टेंट होंगी और इतने वेग आइडियाज होंगे कि आप लिखने के बाद अगर खुद भी पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मैंने ये गलत लिखा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं आपको एक आर्टिकल है ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको पढ़ें और फिर मुझे डेमोक्रेसी के ऊपर एक लिख के दें, तो आप बहुत अच्छा लिखेंगे। तो ये बात मैंने इस सेंस में कही है। जी ठीक बेटा, हो गया? जमान साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर दिया है, और जमान साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लग देता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट यहाँ पे उनमें आयज और सानिया, जरा बेटा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बेसिकली आपको मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बता दूं कि हमारे क्लासेस को स्टार्ट हुए, जो आपका पिछला बैच उनका अप्रोक्सीमेटली को 1 और 2 मंथ हो चुके हैं, लेकिन इवन अप टिल नाउ उनका इंग्लिश ऐसे की पहली क्लास अभी फॉर्मली होनी है। इससे पहले हमने सारा अच्छा काम ही सर, डाटा कलेक्शन पे किया। जी जी। एक्सक्यूज मी सर, ये एक क्वेश्चन था किसी का, मैं उसको जरा आंसर कर दूं जी कि जरूर। हम वो कैब कैसे बिल्ड अप कर सकते हैं। ठीक है, इरफान ने ये क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जी, वो कैब जो है ना, एक तो मैंने बताया कि बैरन की 850, देखें वो कैब जो है उसका जो बेसिक सा तरीका ये होता है। अच्छा, वो कैब ना, वो कैब को इतना ज्यादा नहीं लेना। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल निकाला है डॉन में से, उस एडिटोरियल में से आप गए हैं,
आपने वो पढ़ा है, आपको सारी समझ आई, इसका मतलब कि आपकी वो कैब जो है, वो कैब का इशू नहीं है। लेकिन क्योंकि सीएसएस का उसकी डिमांड है 20 नंबर की वो कैब आनी है, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की होती है। उसका तरीका ये होता है कि अगर आपकी वो कैब वीक है, जो मुश्किल अल्फाज आते हैं न्यूज़पेपर में, आप उनको लिख लें साइड पे, ठीक है, उसको प्रॉपरली सर्च आउट कर लें कि ये लफ्ज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। क्योंकि एक लफ्ज के साथ उसके बहुत सारे और लफ्ज भी मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके साथ सिनोनिम्स देख लें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज्यादा रीडिंग बेहतर होगी आपकी, अब जैसे आपने पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इनमें से आपने कोई ना कोई किताब तो पढ़नी है ना, उसके बगैर तो काम नहीं चलना। अब आपने कोई किताब पढ़नी है 400-500 पेजेस की किताब है, जब पढ़ेंगे कितने ज्यादा अल्फाज आपके नॉलेज में आएंगे, ठीक है। तो ये विद पैसेज ऑफ टाइम, ये जो है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है वोकैब का। ये नहीं है कि आप आज बैठ जाएं और कल कल तक जो है, या 5 दिन आप उसको पढ़ते रहें, जीआरई की लिस्ट को आप कहेंगे आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी, वो आपको भूल जाएंगे 10 दिन बाद। तो ये जो वोकैब को बिल्ड अप करने का प्रोसेस है ना, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जितनी ज्यादा रीडिंग आपकी बेहतर होती जाएगी, आपकी वोकैब बेहतर होती जाएगी। क्लियर? जी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जरा सानिया और आयज दोनों मौजूद हैं यहाँ पे? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह हमारे दोनों वो स्टूडेंट हैं जो एक आर्मी में जा चुके हैं और एक ग्रेड 17 पे जा चुके हैं, और हमारे पास सीएसएस की प्रिपरेशन में भी हैं। अल्लाह ताला मजीद इन्हें कामयाबियां दे। जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अभी जो चीज़ें जमान साहब ने कहीं स्टूडेंट्स को बताएं कि पिछले 1 महीने में हमने आपको किस तरह उस स्टेज के लिए प्रिपेयर किया है कि नाउ यू हैव diversified set of knowledge with, you can say, a basic base for vocabulary, and now you are in that stage कि अब आपको जो कुछ भी तैयार करवाया जाए for essay and for every topic, जो multiple topics हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा रनिंग ट्रैक पे शोर होगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जी जी जरूर। मैंने 2 मंथ पहले एकेडमी ज्वाइन की थी, एंड मैं इंग्लिश में तो यही बोलूंगी, हमेशा कहती हूँ बिल्कुल जीरो थी, नील थी। मुझे इंग्लिश का आर्टिकल बिल्कुल खुद से पढ़ना नहीं आता था। हमें सर वैस क्लास करवाते हैं एक आर्टिकल की, हमें एक एक वर्ड का मीनिंग एंड फिर उसी पे हमें असाइनमेंट मिलती है एंड हम वो करते हैं। उसको मैंने किया। 4 to 5 असाइनमेंट सबमिट कराने के बाद मैं इस काबिल हो गई कि मैं खुद से कुछ पढ़ सकूं। एंड इसके अलावा सीएसएस तो मेरा स्टार्ट था। पाकिस्तान आर्मी की प्रिपरेशन का मुझे कुछ नहीं पता था। ग्रेड 17 डायरेक्ट सर्विसन कैप्टन की पोस्ट के लिए, तो वो मैंने सर से ही कांटेक्ट किया था एंड सर ने मुझे गाइड किया था एकेडमिक वर्शन के लिए। लास्ट ईयर मैंने दिया था एकेडमिक, मेरा फेल हो जाता था। 2 टाइम्स में फेल हो गए, 3 टाइम्स मैंने इस एकेडमी में आके अपना कैप्टन की पोस्ट एकेडमिक पास किया। एंड उसके बाद मेरा मेडिकल फिजिकल भी क्लियर हो गया। इनिशियल हाइट वेट हुआ है। तो इस एकेडमी में मुझे जो 3 सालों में नहीं मिल सका, मैं 3 साल से स्ट्रगल करी थी। मैंने इससे पहले एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पे फीस आया कि इसके अलावा कुछ और एकेडमीज देखी, पर जो मेथड इस एकेडमी का है, सबसे बड़ी बात एक एक स्टूडेंट पे फोकस जो आप करते हैं सर, और जो वीक स्टूडेंट को आप इंपॉर्टेंस वैल्यू देते हैं, उनकी मोटिवेशन, उनको गाइड करते हैं। सेपरेटली एक एक असाइनमेंट चेक होती है हमारी, तो उस लिहाज से हमें काफ़ी ज़्यादा ना हेल्प मिलती है। एंड मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपने एकेडमिक करियर में। इस एकेडमी ने 2 मंथ से मुझे ऐसा पॉलिश किया है कि मैंने 17 ग्रेड का टेस्ट पास किया। एंड मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि जो स्टूडेंट समझते हैं उनकी इंग्लिश वीक है, एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस ऐसे पे, इंग्लिश राइटिंग पे हमें बच्चों की तरह एक चीज़ पढ़ाई जाती है। मोस्ट ऑफ अकेडमीज, मैं 2 अकेडमी एक्सपीरियंस की हैं, तो वहाँ पर कोई हमें आर्टिकल पढ़ने का तरीका तक नहीं बताया जाता। न्यूज़पेपर पढ़ने तक का तरीका, बस ये कहते हैं आप पढ़े पढ़े पढ़े। हम कैसे पढ़े, हमें पता ही नहीं कैसे पढ़े। ये तो मुझे अब आगे पता चला कि हम आर्टिकल पढ़ते कैसे हैं। सर वैस ने हमें पढ़ने का तरीका बताया। मेरा तो बेस्ट एवर एक्सपीरियंस है। एंड सर थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। मैं काफ़ी दिनों के बाद आज ही क्लास में आ रही हूँ, मैं बहुत बिजी थी। तो ये मेरा और एक्सपीरियंस है। थैंक यू सानिया को हम जॉनसन ने कैप्टन सानिया कह सकते हैं। सो थैंक यू कैप्टन सानिया। इंशाल्लाह सर आगे भी दुआ करें, मेरे जो टेस्ट रह गए हैं वो कंप्लीट हो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। ओके सर। तो आइज मौजूद है यहाँ पे बेटा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सो जस्ट टेल स्टूडेंट्स कि किस तरह ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चीजें इंप्रूव होती हैं और आप इन्हें क्या रिकमेंड करेंगे। आज आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें।
सर वॉइस जी जी क्लियर है? जी जी, नाउ योर वॉइस इज क्लियर। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी विजन एकेडमी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी लाइक 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स पहले ही। और मैं तब आपकी तरह ही यहाँ मतलब जीरो आया था। मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं था मुझे। और आप में से काफ़ी यहाँ पे सीएसएस की तैयारी कर रहे होंगे, शायद यहाँ कुछ वो भी हों जो एफपीएससी के वन पेपर की भी तैयारी कर रहे होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एफपीएससी की तैयारी करने आया था वन पेपर की। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर जो मेरी बेस बन गई थी कॉन्सेप्ट्स की। एक वीक में आपकी बेस सारी बन जाएगी कॉन्सेप्चुअली, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। जिस जिस तरह की यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड स्टडी होती है और जो आपको गाइडेंस मिलती है यहाँ पे, नोट्स भी ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। लेकिन एक वीक के बाद ही अपने आप में आप डिफरेंस नोट करेंगे कि आपको इतना कुछ पता लग गया है। और फिर आप कहेंगे जो बाकी आपके साथ बैठे हुए उनको नहीं पता। ये एक वीक की कहानी है ये। तो देन मैं सीएसएस में मतलब ट्रांसफर हो गया था अपने एफपीएससी वन पेपर की तैयारी करने के बाद। आपका सीएसएस से पहले एक एमपीटी भी होता है। तो वो वन पेपर की तैयारी मतलब एमपीटी में आपको काम आएगी जो 2 अक्टूबर को भी शेड्यूल्ड है। तो सीएसएस की मैंने सिर्फ मेरी 1 मंथ मेरा कंप्लीट हुआ है सीएसएस का। और 1 मंथ के अंदर मुझे पेपर को ना अटेम्प्ट करना आ गया कि पेपर में आपने मार्क्स एग्जामिनर से कैसे लेने होते हैं। चाहे वो कोई भी टॉपिक पे लिखना हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। आप सोचते होंगे कि सीएसएस में पेपर में मार्क्स लोग कैसे ले लेते हैं, मतलब उसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, उसका डाटा कहाँ से निकालना होता है, हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। मैंने एक भी बुक परचेज नहीं की, आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। डाटा मैंने सारा गूगल से निकाला है। मैंने जो जो रिपोर्ट्स होती हैं सारी, इकोनॉमिक की रिपोर्ट्स एग्जाम्पल ले लें तो गूगल के ऊपर पड़ी होती हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके डाटा आप वहाँ से निकाल सकते हैं। डाटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड भी किया जाएगा बाद में स्लाइड्स की फॉर्म में ऑब्वियसली, जो आपके फॉर्मल लेक्चर्स होते हैं। लेकिन इस 1 महीने में भी मेरे फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट नहीं हुए और मेरी बेस इतनी स्ट्रांग हो गई है पेपर अटेम्प्ट करने की। मुझे कोई भी टॉपिक दे दिया जाए, चाहे वो इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, इंटरनेशनल रिलेशंस का हो या पाक अफेयर्स का हो, मैं उसके ऊपर 6 से 7 पेजेस इस तरह अटेम्प्ट कर सकता हूँ कि मुझे पता है, लिखते हुए मुझे पता होगा कि मुझे एग्जामिनर ने उसमें 20 में से 13-14 मार्क्स दे देने हैं और वही हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। ठीक है। बाकी एक न्यूज़पेपर की आपको टेंशन होती है कि न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ेंगे। जिनसे आप पूछते हैं वो कहते हैं हमने न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं रोज, बहुत सारे बड़े बड़े डॉन के या डिफरेंट चीज़ों के। तो आपने पूरे नहीं पढ़ने होते। आप न्यूज़पेपर में से जो आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं ना, उनको भी एक तरीका होता है पढ़ने का। हार्डली, जैसे मैंने सर ने हमें कल एक काम दिया था कि हमने रोज आर्टिकल्स पढ़ने हैं और उनमें से हमने 3 चीजें सिर्फ निकालनी होती हैं। एक आपकी होती है थीसिस स्टेटमेंट, जो आपका स्टार्टिंग होता है। उसके बाद उस थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स उसकी, और थर्ड होती है उसकी बॉडी। तो मैंने आज 6 आर्टिकल्स पढ़े हैं जो आज का डॉन का न्यूज़ पेपर था, उसमें से मैंने ये तीनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने पूरा न्यूज़पेपर आज पढ़ा है सिर्फ 45 मिनट्स में। लिख भी लिया, सब कुछ निकाल भी लिया उसमें से जो मेन मेन था। तो वो मुझे यहीं से सिखाया गया कि न्यूज़पेपर को 45 से 1 घंटे के अंदर कैसे पढ़ा जाता है रोज। तो आपको इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। बाकी एंड में मैं एक बात करना चाहूंगा कि आप के कभी आपने टेंशन नहीं लेनी। जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी यहाँ पे होगी ना, 1 महीने के अंदर हो जाएगी। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी और कहीं नहीं होनी। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है, थैंक यू सर। ये मेरा एक्सपीरियंस था अभी 1 मंथ सीएसएस। जी थैंक यू। आई सो स्टूडेंट्स की जबान जरा बेहतर समझते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था। हमारे जो फॉर्मल सेमिनार है जिसके अंदर हमारे जो फैकल्टी मेंबर हैं, जिसके अंदर आपके जो कमिश्नर लाहौर रहे हैं सजाद भुट्टा, उसके साथ भी रिकॉर्डिंग हमारे पेज पे है। जो आपके फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं डॉक्टर हसन इकबाल, उनके साथ भी पेज पे मौजूद है सब लिंक। लेकिन ये एक फॉर्मल सेशन रखने का जो बेसिक पर्पज होता है, एक तो इन स्टूडेंट्स को भी जरा सर जमान के साथ इनका फॉर्मली इंग्लिश का आज स्टार्ट था, इन्हें उन चीजों का पता चला जो अब आगे प्रसू कर रहे हैं। उससे पहले इनके एक बेस हमारे साथ बन चुकी है जिसमें हमने इनको डाटा कलेक्ट करना सिखाया है। तो आयशा, एक चीज मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन पे यहाँ और भी आपको दिखाना चाहूंगा। एक तो ये हमारे स्टूडेंट्स के जो पेपर है, ये अभी वाले के नहीं, जो स्टेम सर्विंग असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना है, ये उसके पेपर है। ठीक है, ये आपके सामने स्टेम स्क्रीन पे मौजूद है। अब अगर आप इस पेपर को देखें और अपने मौजूदा पेपर में आप डिफरेंस करना चाहें, तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होनी चाहिए सबको। एक सेकंड स्टूडेंट, ये जी आप सबके टेस्ट मौजूद हैं। ये देखें स्टूडेंट, आपको जो रिक्वायर्ड है ना, वो देखें कि आपको बेसिकली चाहिए क्या है, जो एग्जामिनर आपसे चाह रहा है। आपके पास सिस्टम स्क्रीन पे मौजूद है, ये देखिए। अल्लाह खैर की थी वो बेटा म्यूट रखे अपने आप को।
शिराज, म्यूट योरसेल्फ। अब ये राइटिंग क्वालिटी आपने अपने अंदर लानी है अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हैं। ये स्टूडेंट आपकी तरह के स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये एक टाइम पे ब्लैंक ही थे, इन्हें लिखना भी नहीं आता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस जर्नी ऑफ 7 to 8 months दे लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन ईच एंड एवरी स्टेप। और उसके लिए जरूरी यही है कि आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने चीजों को साथ साथ कवर करना है। आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको हर चीज की डिटेल के बारे में बताया जाएगा। उसमें सबसे बेहतर चीज कौन सी है, आपकी जो नॉलेज बिल्डिंग है, जब आपका इनपुट जो से उसे बेहतर बनाया जाएगा कि आपने डाटा कलेक्ट कैसे करना है, रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है, फिर ही चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। ठीक है, अब उसके लिए हमने एक और यहाँ पे हमारा एक मेथड है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी कि हम किस तरह काम कर रहे होते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो वर्किंग मेथडोलॉजी है, ये हमारे स्टूडेंट्स के टेस्ट वगैरह सारे यहाँ पे पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको जो बेसिकली जो डाटा हम प्रोवाइड करते हैं आपको वो भी बता दिया जाएगा। ये इस टाइम आप स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। इसके बाद हमारा सेकंड सेमिनार शुरू हो रहा है 7 PM पे, जो 1 पेपर का है और CSS के MPT टेस्ट का है। ठीक है, वो भी आप में से जो लोग अटेंड करना चाहें वो कर सकते हैं। और जो मैंने भी आपको दिखाना था, अब कल हमारा जो काम था बेसिकली हमने करप्शन पे काम किया है। ठीक है, करप्शन ऑब्वियसली, अब करप्शन इस टाइम बड़ी प्रोमिनेंट है, गुड गवर्नेंस एंड करप्शन, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, ये हमारे क्लास लेक्चर है। इसके साथ हमारी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, जो बात आपको जमान साहब ने ही बताई है कि आपने किस तरह चीज़ों को कवर करना है, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आपका नॉलेज हो। उस नॉलेज के लिए दो चीज़ें, या तो ऐसे को प्रिपेयर करते हैं आपके 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाते हैं, या 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं आपका ऐसे प्रिपेयर हो जाता है। तो हमने जरा एक मल्टीपल अप्रोच रखी है कि साथ साथ दोनों चीज़ें क्लियर होती हैं। अब ये कल क्लास को जो डाटा यहाँ प्रोवाइड किया गया, इसमें देखें आर्टिकल भी मौजूद है। उसके साथ फिर हमने, स्टूडेंट्स को नहीं पता करप्शन क्या होती है, करप्शन की टाइप्स क्या है, पूरी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, उसके साथ कोई ना कोई रिसर्च वर्क, ये देखेंगे सब कुछ हमने जो कल इनको फाइल प्रोवाइड की है, इसमें सारी करप्शन की टाइप्स भी बताई गई हैं। उसके साथ साथ जो UN ने 5 प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस दी है उनको अटैच किया है। इसके बाद इनको मैंने असाइनमेंट दी कि अब आपने मुझे सबमिट करवाना है कि पाकिस्तान का जो प्रेजेंट केस है, इसके ऊपर आपने लिखना है कि पाकिस्तान में किस किस्म की करप्शन है, उसको हम किस तरह UN के रिकमेंडेड प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करके दूर कर सकते हैं। और पाकिस्तान इज ए डेवलपिंग कंट्री, यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जांपल ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्री जहां पे इस टाइम जीरो करप्शन है, यहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट करप्शन है। तो ये सब कुछ जब इन्होंने किया है तो ऑब्वियसली खुद देखिए आप इस स्टूडेंट का फर्क, आप उस स्टूडेंट से किस तरह देखे, खुद ही पेपर में जाना है जिसने सिर्फ क्रैम्ड मटेरियल और रट्टे से या आउटडेटेड मार्केट की गाइड से और एकेडमी से प्रिपरेशन की होगी। So this is all what you all are going to do with us in this journey of 6 to 7 months. So this is all from our side. I hope कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने 1 पेपर की जानिब। CSS में भी आपके 220 मार्क्स के MCQs हैं सिंपली, और उसके साथ साथ आपका MPT टेस्ट जो है, जो इनिशियल टेस्ट आपका इंशाल्लाह अक्टूबर में होगा, वो आपका कंप्लीटली MCQs बेस्ड है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक एक सेपरेट सेशन में, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की होगी और सारा आपको चीजें जो सी वो ग्रेजुअली सिखाई जाएंगी। अभी हम उसकी डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। सर CSS की प्रिपरेशन के लिए रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं? बेटा रेगुलर क्लासेस हमारी इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। एक आपकी ट्रायल क्लास होगी, वो आपकी इस वीक में ही होगी, और आपकी मंडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। ओके सर, एंड इट्स टाइमिंग एंड फी स्ट्रक्चर? टाइमिंग एंड फी स्ट्रक्चर अभी आपसे ग्रुप में जो आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है वो शेयर करेंगे। आपको तमाम तरह डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे, और रेगुलर क्लासेस वीक में जो सी 5 डेज क्लासेस होंगी, और 6th डे आपका टेस्ट डे होगा, और 1 दिन छुट्टी होगी आपकी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मल सारा पैटर्न है। और जो बाकी आपकी डिटेल है फॉर एडमिशन ऑल डैट, वो जिस नंबर से आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है शान आसिफ, वो आपको सारी डिटेल यहाँ भी मेंशन कर देते हैं। शान बेटा आप मौजूद हो? मैं इनको बता दूं? जी आइज आप बता दें बेटा। सर आइज CSS भी हमारे पूरे कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द क्लियर करके फैकल्टी में भी आएंगे जैसे उबैद आए हैं इंशाल्लाह। सर फी स्ट्रक्चर का किसी ने पूछा, तो आपकी 7 मंथ्स का ये कोर्स होता है। फर्स्ट मंथ में आप सबमिट करवाएंगे 7,000 + 1,000। 7,000 आपकी CSS की फीस है और 1,000 आपकी एनरोलमेंट फीस है। ये सिर्फ आपने एक ही बार देनी होती है, बाकी फिर आपका पर मंथ 7K ही होता है। मतलब हर मंथ 7K है, सिर्फ पहले मंथ में 1K एक्स्ट्रा है एनरोलमेंट की। और टाइमिंग्स आपकी 2 क्लासेस होती हैं, एक शाम को 6 से 7 PM और दूसरी आपकी क्लास होती है 9:15 से 10:15।
6 से 7 वाली आपकी क्लास होती है CSS की, और 9:15 से 10:15 वाली आपकी क्लास होती है MPT के लिए, जो CSS का MPT आपका स्टार्ट में होगा उसकी प्रिपरेशन के लिए। और सर थैंक यू इसमें सारे सुहास सर एक्सक्यूज मी जी सर, जी इसमें ये होगा कि सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे या सारे ओनली सब्जेक्ट कवर इंग्लिश? होंगे। नहीं नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट आपके सारे सेलेक्ट भी करवाए जाएंगे बेटा, उन सबको कवर भी करवाया जाएगा। और हमारी जो ड्यूरेशन है वो 6 to 7 मंथ का हमारा सेशन है, इंक्लूडिंग योर टेस्ट सेशन। एक्सक्यूज ओके मी सर, सर, सेपरेटली हाउस एक बारी बारी क्वेश्चन करें प्लीज, एक सेकंड जी, आप बारी बारी सवाल करें। अनम बेटा आप बोले। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम मेरा भी सलाम। है कि आप जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये आप हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली सिलेक्ट करवाएंगे? इंडिविजुअली बेटा आपका एक सब्जेक्ट सिलेक्शन सेशन होगा, जिसमें आपके इंटरेस्ट को, आपके बैकग्राउंड को, और जो तीसरी चीज है स्कोरिंग ट्रेंड को देख के आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, ये पूछा। अस्सलाम वालेकुम। एक जी सवाल वालेकुम अर्ज है। सलाम। जी जुबैर बेटा। सर जो है ऑफलाइन क्लासेस हमारी ऑनलाइन क्लासेस पूरे पाकिस्तान के लिए, हमारे ऑन कैंपस जोन से लाहौर में कैंपस है, और ऑनलाइन क्लासेस में हमने कुछ ऐसी चीजें ऐड की हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी और इदारे के पास नहीं। सबसे पहली चीज, आपको रोज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ताकि ये इट्स टेक्नोलॉजी, आपका किसी टाइम अभी भी देखें आपका सेमिनार रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आपको क्लास मिस कर दी है या आपको कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, तो दोबारा आप रिकॉर्डिंग से सुन के समझ सकते हो। फिर दूसरी चीज ये कि आपको हर चीज स्लाइड फॉर्म में मिलेगी, हर चीज का कंप्लीट डाटा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमारा डाटा किस फॉर्म में होता है। ये देखिए, अब आपके मेरे साथ जो मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाने हैं वो आपके करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज और IR1 है, इंटरनेशनल रिलेशन के। ठीक है, और ये आपके लेक्चर्स हैं। ये देखें, पूरा एक एक चीज, एक एक मिनट आपका हमारे साथ प्लान्ड है, एक एक दिन प्लान्ड है, जिसके मुताबिक हमने आपको लेके चलना है। और जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड मटेरियल है, जिसको हमने, जिस पर कंप्लीट रिसर्च हुई है। जो मेरे स्टूडेंट, ये जस्ट लाइक आपको यहाँ लोग जो टीच कर रहे हैं, उनमें से भी कोई 2-3 मेरे स्टूडेंट ही हैं जो माशाल्लाह इस टाइम टॉप टियर गवर्नमेंट पोजीशन पे भी मौजूद है। लेकिन उसके अलावा हमारे 35+ स्टूडेंट वो हैं जो इस टाइम सर्विंग एसीज हैं। ये उन लोगों ने डाटा जो उनसे बैठ के कंपाइल किया आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप इस डाटा को देखें तो इसमें हर चीज एड ऑन की गई है। ये टेस्टिफाइड डाटा है, जो कि आपके जो टॉप टियर पोजीशंस पे जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे स्टूडेंट्स गए हैं, उनसे हमने तैयार करवाया आपके लिए। हमने, आप एक चीज ध्यान में रखें, हमें ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल है। जब का कोविड आया हमने इसको ऑनलाइन सेटअप को स्टार्ट किया है, और हमने तब तक ऑनलाइन सेटअप शुरू नहीं किया जब हम इसको 100% फिजिकल से बेहतर ना बना लें। और इस टाइम अगर मुझसे पूछे तो जो प्रेजेंट मुल्की हालात चल रहे हैं, जिसमें हर चीज की कॉस्ट ऊपर से ऊपर जा रही है, हमारा यहाँ पे बेसिकली जो पर्पज है वो सिर्फ ये नहीं कि हमको फाइनेंशियल पर्पज से यहाँ पे चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल बिलोंग फ्रॉम वेल सेटल्ड बैकग्राउंड, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस इदारे के लिए जो हम चाह रहे हैं वो सिर्फ ये चाह रहे हैं, हमारा विजन ये है कि जो प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ा है जब हम लोग स्टूडेंट थे, वो आज आने वाली नई जनरेशन को ना गुजरना पड़े, और हम बेहतर से बेहतर एक क्वालिटी स्टूडेंट जो उनसे वो मार्केट में लेके आए, जो जब सर्व करें नेशन को तो पता लगे ये तरबियत याफ्ता लोग हैं। और एक चीज मैं और मेंशन कर दूं, हमारी एक स्पेशल स्कॉलरशिप है, ठीक है, जो हमने अपने पिछले सेशन से स्टार्ट की है। ये हमारे वो स्टूडेंट जो इस टाइम सर्विंग हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज की है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो मुल्की हालात चल रहे हैं इसमें हर स्टूडेंट के लिए फी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ये है कि हम वो जो जितने हमारे सर्विंग स्टूडेंट हैं, जिनके अंदर टॉप टियर आपके जो उनसे एसीज हैं, एसपीज हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक फंड अपना इकट्ठा किया है, जिसकी बेस पे हमारे जो स्टूडेंट नीडी हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या किसी बैकवर्ड एरिया से हैं, या इवन के मेरिट बेस पे कुछ लोग एलिजिबल हैं, उन लोगों को फी कंसेशन दी जाएगी, सो डैट कि वो अपनी स्टडीज को इस दौर में भी पढ़ सके, और ये इस तरह चेन के साथ से चीजें आगे बढ़े। थैंक यू सर वेरी मच फॉर इंफॉर्मेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई सवाल सीएसएस के बारे में तो नहीं बेटा? हम आगे चले, अब वन पेपर पे, वन पेपर की हमारे सेमिनार का टाइम भी हो गया है। अच्छा, अपने आप को म्यूट रखो सब लोग, सिर्फ जिस टाइम पार्टिसिपेट करना है तब आपने अनम्यूट करना है। अच्छा, हमारी क्लास का भी तरीकेकार यही है, यू ऑल आर ऑलवेज अलाउ कि आप जब भी अपने आप को अनम्यूट करना चाहे कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे फिजिकल क्लासेस में बैठे, जब कोई सवाल हो आप पूछें, लेकिन उसके बाद दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें, सो डैट कोई आपकी तरफ से जो वॉइस पीछे को आए तो उससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आगे मूव करें स्टूडेंट्स, सीएसएस के बारे में क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लोज हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसको आप वन पेपर एमसीक्यूज एग्जाम कहते हैं, जो कि आपका तमाम गवर्नमेंट जॉब के लिए सीएसएस पीएमएस के इनिशियल्स के लिए होता है।
तो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा सो डैट कि हमारी जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो।